হরে কৃষ্ণ সবাইকে। তো আজকে আমরা দুজন বিকেলবেলায় ঘুরতে বেরিয়েছিলাম এবং ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে গিয়েছিলাম একটা ঐতিহাসিক জায়গায়। তো ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ জায়গা বলে আমি ডিসাইড করলাম যে একটা ভিডিও করে নিই। তো এই জায়গাটা হচ্ছে ভুবনেশ্বর শহর থেকে 7 কিলোমিটার দূরে হবে। কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভের পরেও যখন সম্রাট অশোক তার জীবনে শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন তার সেলফ রিয়েলাইজেশন হয় এবং তিনি বুঝতে পারেন যে যুদ্ধ কখনো শান্তি জীবনে এনে দিতে পারে না। তাই তিনি শান্তির পথ বেছে নিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মকে পুরোপুরিভাবে তার জীবনে গ্রহণ করে নিলেন। এরপরেই সম্রাট অশোক চণ্ডাশোক থেকে ভদ্রাশোকে পরিবর্তিত হলেন এবং এই যে ধৌলগিরি এই জায়গাটি, এখানেই তিনি একটি রক এডিক্ট অর্থাৎ যে একটা পাথর রয়েছে তার উপরে তার শান্তির বার্তা প্রথম লিখেছিলেন। আর যারা বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল বা বুদ্ধিস্ট মঙ্ক ছিলেন তাদেরকে বলে এখানে একটা শান্তি স্তূপ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বললেন এবং প্রথম পাথরটি তিনি এখানে রেখেছিলেন। তার লেখাগুলো এই স্তূপের ভেতরে রয়েছে। যদি আমরা যে সময়টাতে এখানে এসেছি এই সময় এই স্তূপের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ রয়েছে, আর সেই কারণেই সম্রাট অশোকের লেখা সেই শিলালিপি বা রক এডিক্ট সেটা আমরা দর্শন করতে পারলাম না। তবে আমরা এই শান্তি স্তূপের আশপাশটা ঘুরে দেখছিলাম এবং এখান থেকেই দেখা যাচ্ছিল নিচে একটা রজ উৎসব হয় এই ভুবনেশ্বরে বা উড়িষ্যায়। সেই উৎসব উপলক্ষে একটা নাটক পরিবেশন হচ্ছিল, দূর থেকে এটা দেখা যাচ্ছিল এবং শোনাও যাচ্ছিল। আর এই স্তূপের উপর থেকেই পুরো ভুবনেশ্বর শহরটাকে দেখতে পাওয়া যায় আলোর মাধ্যমে। এই স্তূপের আশেপাশেই রয়েছে অনেক গৌতম বুদ্ধের বিগ্রহ এবং ছোট ছোট মন্দিরও, তবে এর সাথেই রয়েছে একটা বড় শিব মন্দির। অন্যান্য সব দর্শনীয় স্থানের মতো এখানেও একটা মেলার মতন বসেছে, যেখানে রয়েছে খেলনার দোকান, খাবারের দোকান, শোপিসের দোকান। এবার আমরা এই শান্তি স্তূপের পেছন দিকটায় চলে এসেছি। এখানে এসে যেহেতু প্রবেশ নিষেধ, তো বাইরে থেকেই কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। তারপর আমরা যাব পাশে যে ধওয়ালেশ্বর মন্দির রয়েছে। এখানকার স্থানীয় লোকের মতে সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ জয়ের আগে থেকেই এখানে মহাদেবকে ধলেশ্বর রূপে তার শিবলিঙ্গের পূজা করা হতো এই পাহাড়ের উপরে, এবং ধলেশ্বরের নামেই এখানে ধৌলগিরি পাহাড়ের নাম পড়েছে। তো সেই কারণেই পরবর্তীকালে 1972 সালে এই বড় মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরের আঙিনায় জুতো খুলে রেখে এবার আমরা প্রবেশ করলাম। অনেকটা বড় জায়গা জুড়ে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত, আর চারপাশে উঁচু দেওয়াল করে দেওয়া রয়েছে এবং তার থেকে নিচের দিকে তাকালে দেখা যায় যে কতটা উচ্চতায় এটা তৈরি। পাশে একটা নদীও বয়ে চলেছে, যদিও নদীটা এখন শুকনো রয়েছে। আর মন্দিরের দেওয়ালে রয়েছে দেবী মূর্তি, সামনে রয়েছে সিংহের মূর্তি, আবার শিবলিঙ্গের সামনে নন্দী মহারাজের মূর্তি রয়েছে, আর এখানে রয়েছে একটা তুলসী বেদি। তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে শিবলিঙ্গের সামনেই যজ্ঞের আলো জ্বলছে আর নন্দী মহারাজ সামনে থেকে দেখছে। এবার আমরা মন্দিরের ভিতরে গিয়ে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে নিয়ে তারপর আবার বাইরেটাতে আমরা দেখতে থাকলাম যে এখানে পরিবেশটা এত সুন্দর। রাতের বেলা যদিও ক্যামেরায় তেমনভাবে কিছুই তোলা যায়নি, দেখাই যাচ্ছিল না ক্যামেরার মধ্যে থেকে, তবে আমরা যেটা নিজেদের চোখে দেখেছি পরিবেশটা এত সুন্দর, এত মনোরম। দিনের বেলাতে কখনো গেলে অবশ্যই আমি সেটা ক্যাপচার করব। আজ এটা ক্যাপচার করা গেল না, তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব সুন্দর এখানে। এরপর আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছিলাম, যেহেতু আবার একটা লাইভ সাউন্ড শো হতে চলেছিল এই স্তূপের গায়ে। আমি তার অনেকটা অংশ এখানে এই ভিডিওর সঙ্গে ইনক্লুড করে দিলাম। के इलाकों को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत अभी भी दिल में कसमसा रही थी। साल था ईसा पूर्व 305 का। चंद्रगुप्त सेल्यूकस से जा भिड़ा। लंबी चली लड़ाई में जीत चंद्रगुप्त के नाम हुई और उसने सेल्यूकस को हरा सिंधु के बड़े भूभाग पर कब्जा जमा दिया। बंगाल से लेकर हिंदू कुश और हिमालय से लेकर नर्मदा तक के प्रदेश चंद्रगुप्त की छत्र छाया में आ गए। एक नए युग, नई व्यवस्था ने बीज से पौधे का रूप दे लिया। राज्य साम्राज्य में बदल गए और जन्म हुआ दुर्जय मौर्य साम्राज्य का।
ऐसा कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी बन गए। अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप जैन मुनियों के साथ दक्षिण की ओर चले गए तथा जैन रीति के अनुसार अनाहार द्वारा अपने जीवन का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने विशाल मौर्य साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का सपना बिंदुसार का सपना बना। उसने दक्षिण पर आक्रमण कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण में मैसूर तक कर दिया। उसने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच के समस्त प्रदेशों को जीतकर मौर्य साम्राज्य के अधीन कर लिया। भारत के विशाल भूभाग पर मौर्य के रथ की विजय पताका लहराते दौड़ने लगी। लगभग सारा उपमहाद्वीप मौर्यों के कब्जे में आ गया। सिर्फ एक क्षेत्र था जो अब भी उनकी पहुंच से बाहर था। वो था पूर्वी तट कलिंग। कलिंग आजाद अविजित था। उसने विजयी मौर्य रथों को अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया था। कलिंग की सीमा पर अब भी कलिंग का ही ध्वज लहरा रहा था। बिंदुसार की कई पत्नियों में से एक थी धर्मा। उसी के गर्भ से जन्म लिया बालक अशोक ने। अशोक के जन्म और उसके पराक्रम की भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध ने पहले ही कर दी थी। एक ऐसा राजा इस धरती पर जन्म लेगा जो पराक्रमी होगा, धर्म ध्वजा को थामेगा और धर्म के विचार को सागर पार तक ले जाएगा। भविष्य अशोक की राह देख रहा था। अपने कई भाइयों में छोटा अशोक मेधावी था। गुरुओं की बताई बातों को फौरन समझ लेता। शस्त्र चलाने का खेल उसे खूब भाता था। दुश्मन के वार से किस तरह बचना है, शत्रु को कैसे अपनी तलवार के नोक के नीचे लाना है, ये कला उसने बचपन में ही सीख ली थी। शस्त्र कला के अभ्यास में वो अक्सर अपने बड़े भाई सुसीम को परास्त कर देता था। वाह, अद्भुत! अशोक मेरे पुत्र, तुम्हारा भाई सुशील तुमसे ज्येष्ठ है, उम्र में तुमसे बड़े हैं, लेकिन शस्त्र चलाने को तुम्हारी अद्भुत क्षमता और पराक्रम के आगे तुमसे छोटे हो जाते हैं। तुम दोनों मुझे प्रिय हो पुत्र। तुम पितामह चंद्रगुप्त के पौत्र हो, मौर्य साम्राज्य के भावी संरक्षक। तुम्हारी देखरेख में मौर्य वंश और साम्राज्य वैसे ही सुरक्षित रहेगा जैसे मां की गोद में और पिता की छाया में शिशु। पुत्र अशोक, अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे कंधे पर साम्राज्य के एक हिस्से की देखरेख का भार सौंप थोड़ा निश्चिंत हो सकूं। राजकाज में रुचि लेना प्रारंभ करो पुत्र। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को राजकाज के कामों में लगाया। उसकी प्रतिभा पर गहरा भरोसा दिखाया। पिता का ये अगाध प्रेम और अशोक के प्रति बढ़ते अनुराग से सुशील व्याकुल हो उठा। अपने पिता की संतानों में मैं ज्येष्ठ हूँ। राज की जो बागडोर मेरे कंधे पे होनी चाहिए वो अशोक के कंधे पे डाली जा रही है। पिता का अशोक के प्रति यह अनुराग मन शौकित होता है। सुशील बेचैन था और अशोक लगन धैर्य के साथ प्रांतों को नियंत्रित करने के कार्य में लग गया। अपने साहस, बुद्धि और नियंत्रण करने की अद्भुत क्षमता ने अशोक की लोकप्रियता में चार चांद लगाना शुरू कर दिया। अशोक की बढ़ती प्रसिद्धि और प्रांतों को नियंत्रित करने की क्षमता से जहां एक तरफ बिंदुसार का भरोसा अशोक के प्रति बढ़ता जा रहा था, वहीं युवराज सुशील का भावी सम्राट बनने का भरोसा डगमगाने लगा। युवराज होने के बावजूद अशोक उसे प्रतिद्वंदी की तरह नजर आने लगा।
सुदूर उत्तर पश्चिम तक्षशिला के प्रांत में असंतोष बढ़ने लगा था। फौजी गुटबाजी शुरू हो गई थी। एक प्रांत के अंदर कई सैन्य दल बन गए थे। उनकी आपस की खींचतान और असंतोष से तक्षशिला खतरे में था। सुसिम के लिए यही अवसर था जब वो अशोक को पिता बिंदुसार की नजरों से दूर कर सकता था। सुसिम ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। तक्षशिला में बढ़ती अशांति और असंतोष ने मौर्य साम्राज्य को संकट में डाल दिया है। तक्षशिला की रियासतें आपस में शत्रुता पाली हुई है। रियासतों के सैन्य दल आपस में लड़ रहे हैं। यदि इसे शीघ्र रोका नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जब तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देगा। पितामह चंद्रगुप्त के साम्राज्य की रक्षा करनी है तो तक्षशिला के विद्रोह को शांत करना ही होगा। हम भाइयों में सिर्फ अशोक ही ऐसा है जो इस विद्रोह को शांत कर सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अशोक को यथाशीघ्र तक्षशिला प्रस्थान करने का आदेश दें। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में हो रहे उपद्रव और बढ़ रही अशांति को शांत करने के लिए तक्षशिला जाने का आदेश दे दिया। अशोक अपने बड़े भाई सुसिम की योजना से अनजान अपने दल बल के साथ तक्षशिला की ओर बढ़ चला। अशोक ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला आज के सिंध प्रदेश तक की लंबी यात्रा तय की। अशोक की व्यवहार कुशलता, उसकी बहादुरी और राज चलाने की उसकी नीति से तक्षशिलावासी पहले से ही परिचित थे। अशोक के तक्षशिला आगमन को वहां के लोगों ने बड़े उत्साह और खुले हृदय से किया। अशोक का जबरदस्त स्वागत किया गया। तक्षशिला की धरती पर न घोड़े दौड़ाए गए, न तलवार चली, न ही लहू बहा। अशोक के आगमन और उसकी व्यवहार कुशल राजनीति ने आपसी उपद्रव मनमुटाव को बिना किसी युद्ध के शांत कर दिया। तक्षशिला की सफलता की खबर जब पाटलिपुत्र पहुंची तो सम्राट बिंदुसार का सर और गर्व से भर उठा। अशोक के प्रति स्नेह, अनुराग और आस्था महाराजा बिंदुसार के हृदय में बस गई। यही सुसिम के लिए चिंता की बात थी। सुसिम को उसकी अपनी सत्ता हिलती नजर आई। अशोक को अपने रास्ते से हटाना सुसिम का एकमात्र लक्ष्य बन गया। सुसिम ने अशोक के खिलाफ महाराज के कान भरना शुरू किए। महाराज बिंदुसार को अशोक के विरुद्ध करने के लिए जितने प्रयोजन हो सकते थे सब किए। सुसिम युवराज था, मौर्य साम्राज्य का भावी शासक। उसका इस प्रकार सोचना बिंदुसार को चिंतित किए जा रहा था। सुसिम की बातों में भविष्य के खतरे की गंध आ रही थी। बिंदुसार ने अशोक को अपने से दूर भेज दिया। अशोक को देश निकाला मिल गया। क्रोध और घृणा से भरा अशोक अपने भाई सुसिम की योजना को भली भांति समझ चुका था। अपने हृदय में धधकती ज्वाला को दबाए अशोक मौर्य साम्राज्य से बाहर निकल गए। मौर्य साम्राज्य के महाराज जो मेरे पिताजी हैं, उनका संदेश आया है। पिता मुझे वापस लौटाने को कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रांत उज्जैन में भयंकर विद्रोह जो छिड़ा है। मेरे अपने ही भाई ने मेरे खिलाफ पिताजी के कान भरे, मेरे खिलाफ किया। यही पिताजी जो निमंत्रण देकर मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने देश निकाला का आदेश न तो एक पल की भी देर नहीं किया। ये कैसा संबंध है? क्या ये निमंत्रण सिर्फ इसलिए है कि मेरे भाइयों में विद्रोह को कुचलने का साहस नहीं? फिर तो युवराज सुसिम को कोई अधिकार नहीं कि वो मौर्य साम्राज्य की प्रजा पर राज करेगा।